अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहितः सिद्धाष्टसिद्धीश्वरः आचार्याजिनशासनोन्नतिकरः पूज्योपाध्यायकः श्रीसिद्धान्तसुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधकः पञ्चैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलम्। श्रीमन्नम्रसुरासुरेन्द्रमुकुट प्रत्युत्तररत्नप्रभा भास्वत्पादनखेन्दवः प्रवचना भूदीन्दवः स्थायिनः ये सर्वे जिनसिद्धसूर्यनुगतास्ते पाठकाः साधवः स्तुत्या योगिजनैश्च पञ्चगुरवः कुर्वन्तु ते मङ्गलम्। सम्यक् दर्शनबोधवृत्तममलं रत्नत्रयं पावनम् मुक्तिश्रीनगराधिनाथ जिनपद युक्तोपवर्गप्रदः धर्मः सूक्तिसुधा च चैत्यमखिलं चैत्यालयः श्यालयः प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममि कुर्वन्तु ते मङ्गलम्। नाभेयादिजिनः प्रशस्तवदनः ख्याताश्चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो भरतेश्वरप्रभृतयो ये चक्रिणो द्वादश। नमो
મહાપુરુષે ઉપમા આપી છે કે આપણે હટ કરવાની છે કોની સાથે ખબર છે? કર્મ સાથે. કોની સાથે હટ કરવાની છે? તો કર્મને હટાવવા માટે મારે પૂજા તો તૈયાર રાખવી પડે. તો તે હાથ ક્યાં રાખશો? ઓ વિદ્યુત સુરેન્દ્ર મહાવિદ્ય સર્વ કર્મ સંધાતા
નવકાર મંત્ર ગલથુથીમાં તમને આપવામાં આવ્યો, એ નવકાર મંત્રનો ગણવાનો રાઈટ તમને ક્યારે મળે? શાબાશ. મંત્ર, અને એ મંત્ર આપણને હર ઘડીએ, હર સમયે, હર સ્થાનમાં એ સહાયક બને. એવો એક નવકાર મંત્ર આપણને ગલથુથીમાં મળ્યો. આપણે 11 નવકાર ગણ્યા એટલે સંતોષ માની લીધો, ભગવાન મારી સાથે જ છે. આજે એક નિયમ કરવો છે, સવારે ઉઠો, રાત્રે સૂવો ત્યાં સુધીમાં 108 નવકાર ગણવાના. હાલતા, ચાલતા, બેસતા, ઉઠતા, મોઢામાં કદાચ તમે ડૂચો નથી નાખતા પણ સારી વાત છે, પણ ડૂચો હોય તો પણ વાંધો નહીં, પગમાં પકડતા હોય તો પણ વાંધો નહીં, અશુદ્ધ જગ્યા હોય તો પણ વાંધો નહીં, હોઠ ફફડાવ્યા સિવાય આપણે 108 નવકાર ગણવાના. નવકાર ગણતા હોય અને મોબાઈલમાં રિંગ વાગી વાત કરવાની છોડ. કેટલાક ધ્યાન રાખવાના કે જેટલા ગણાયા હોય એટલા. 12 ગણાય તો 15 ગણાય તો 15, 1000 ગણાય તો 1000, જે ગણાયા તે ફરી પાછા 2, 5, 10 મિનિટનો ટાઈમ મળ્યો, પાછા નવકાર ચાલુ કર્યા. તમે ટ્રેનમાં હો, કારમાં હો, ગમે ત્યાં જતા હો, તમારો નવકાર જો તમારી સાથે હોય ને અચાનક જો એક્સિડન્ટ આવી જાય તો આ બાદ બચી જાઓ. અને કદાચ આયુષ્ય પૂરું થવાનું હોય અને મૃત્યુ પામે તો પણ દુર્ગતિ તો ન જ થાય. એવો નવકાર મંત્ર આપણે બચેલા નવકાર છેલ્લે પથારીમાં બેસીને પણ ગણીને સુવાનું. MBBS કરે છે. અચ્છા, તો તમારે મંત્ર નવકાર ગણવા જોઈએ. સત્યમ, સિદ્ધ સત્યમ, સાહુ સત્યમ, ધમ્મ સત્યમ, ધારણા, અભિનવકાય, અનઠન વગેરે શાસ્ત્રાગાર, મહાપુરાગાર, સંપર્સવાય ત્યાગાગનો ગોસી રહે. શું બોલવાનું? ગોસી રહે. હું આજથી બધા જીવોને વૈલાન આપીશ, આપણે કપાઈશ. એટલે સામેવાળાને સમજીને અનુકૂળતા મુજબ આપણે કરવાનું. એમ નથી કહેતો કે દયા જ રાખજો, કારણ કે જીવન લઈને બેઠા છે એટલે કરવું તો પડશે, પણ અંદરથી દયા રાખવાની કે આ ભાઈ આ જીવનું સરળતાથી થાય, સારું થાય અને મને ઓછું મળશે તો ચાલશે. એવા અમે ઘણા બધા ડોક્ટર જોયા છે. તો મળે ને તમારા જીવનની અંદર તમને ક્યારે જીવન જેવું દેખાય? તમારા જીવનની અંદર એટલી બધી શાંતિ, સમાધિ અને સમૃદ્ધિ આ ત્રણેય તમારી પ્રસકાવી ઉભા રહે. કેમ? તો કે હામેવાળાનો અહીંયા આગળ રક્ષા પકડી આપવામાં આવે છે. રક્ષા પકડી બાંધવાનો મંત્ર બોલાશે. પરમાત્માની સામે દ્રષ્ટિ રાખતા રાખતા કરી શકે તો એને માટે પૂર્વ ભૂમિકા અહીંયા બાંધવાનો. અને ગોબર એટલે ગાયની ગોબર જે પીંડનો પડેલો હોય ને એ પીંડનો સુકાઈ જાય એટલે એને રાખ બનાવી અને એ રાખ મૂકવામાં આવે. ગરમીમાં એ રાખ લગાવો તો ગરમી પણ તમારી રાખ પ્રતિભાગી જાય. ગુરુ ભગવાન તો રોજ કરે ત્યારે ગોબરની રાખનો ઉપયોગ કરે. એન્ટિસેપ્ટિક રાખ છે.
તો એવી બે વસ્તુ આ પોટલીની અંદર રાખવામાં આવેલી છે અને એના દ્વારા સ્વાસ્થ્યનું રક્ષણ થાય છે. मुझे दुनिया से नहीं कोई मैं तुझको आधी रात दर्शन मेरे मन में बसी प्रभु मूर्तियां मेरे मन में बसी प्रभु जब मेरा दीना दीना ए किस्त किस्त था कहा स्वाहा ओम निवरम सिद्धाधिपते नमः स्वाहा परम गुरु परमनाथ परमानंद चतुष्टय परमात्मस्तुभ्यं
क्या लिखते हैं? माँ और पिता का नाम अंदर जोड़ा जाता है। हमने हमारे बेटे का इस दिन शादी तय किया है, आप सभी को मंगल आशीर्वाद देने के लिए आए। जन्म देने में माता, शादी कराने में माता पिता। अब कब समझ लो कि कुछ ऐसा कर्म हो गया और ये बेटे का आयुष्य पूर्ण हो गया, तो उस समय में क्या लिखते हैं? ऐसा ही बैठा है, उठाने के लिए बैठा है। लिखो ना इसमें कि डॉक्टर साहब को जो पसंद आया वो सही। डॉक्टर बोले मैं बेटे को थोड़ा मारा है, मेरा नाम क्यों दे रहा है? ये बोलने वाला है, ये बोलता नहीं है, इसलिए चलता है। दूसरी बात मानता है भगवान ने बनाया, भगवान ने बनाया, भगवान ने बनाया, भगवान ने बनाया नहीं सब कुछ। मैं पूछता हूं कि बॉम्बे में सबसे पहले क्या बना? अरे दहानों में क्या बना? छोड़ो बात, समुद्र बना। समुद्र को किसने बनाया? भगवान। आगे आगे भगवान के ऊपर सभी प्रवृत्ति, सभी क्रिया करते हैं हम और डालते हैं भगवान के ऊपर। इसीलिए कहते हैं कि जैन दो प्रकार के भगवान मानते हैं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं। अरिहंत परमात्मा बनाता नहीं है, बताता है। भगवान बनाता नहीं है, बताता है। क्या बताते हैं? पुण्य और पाप के मार्ग। आपको सुखी होना है तो ये बाजू जाइए, दुखी होना है तो ये बाजू जाइए। हम चलते क्यों? भगवान कहते ऐसे तो हम करते नहीं है, फिर कहते हे भगवान, हे भगवान। भगवान क्या करे? जो सुनाया, मैंने समझाया, वो तो करने को तैयार नहीं है और नहीं समझ रहा है, वहां गौर करके जाता है, तो भगवान कुछ नहीं कर सकते। आज के जमाने में सबसे बड़ा कोई जो है तो माता पिता भगवान के कितने मानते हैं? माता पिता। माता पिता जो नहीं रहते तो मंदिर भी आपको दिखाते नहीं, माता पिता जो नहीं रहते तो चलना भी सिखाते नहीं, माता पिता जो नहीं रहते तो धूप में से छांव में लाते भी नहीं और खुद भूखे रह के खिलाते नहीं। मगर हम तो ये मानते मंदिर में बैठे वो भगवान, बाकी सब हमारे मर्जी के खिलाफ। माता पिता कभी मर्जी के खिलाफ नहीं होते। माता पिता जो रास्ता दिखाते हैं वो सही रास्ता दिखाते हैं, वो समझदारी से अनुभव दिखाते हैं कि बेटा ये मन करने लायक नहीं है, ये करने लायक है, मगर हम समझते नहीं है। आप क्या जानो, अभी नया दौर चला है, आप आपकी जगह पे बैठो, हमारे काम में कराओ। हम सब कुछ जानते हैं कि आपको पढ़ाया लिखाया, बेइज्जती दी, इतना बड़ा किया, तो ये इनकी गलती हो गई, ये इनकी गलती हो गई। आज बहुत सारे गांव में भी बहुत सारे घर ऐसे हैं कि जिसके परिवार में से कई सारे लोग फॉरेन में हैं। माता पिता की सुविधा होती नहीं है, मगर जिस समय में माता पिता को आपकी आवश्यकता है उस समय में आप नहीं है तो कुछ नहीं। कितने भी पैसे आप डाल दो, अभी बोल देते आपकी इतनी तो सुविधा दे दी है, इतना तो सब कुछ कर दिया, अब क्या है? अरे ये बोलना हमारा मुंह में से लज्जा ही नहीं निकलना चाहिए, मगर हमारे लिए भी हमें कुछ निश्चितता, निश्चयता के साथ कुछ चाहिए। तो इसके लिए आलम्बन यही है, दो ही आलम्बन है, एक परमात्मा की प्रतिमा और दूसरा शास्त्र आलम्बन। मनन चिंतन पठन पाठन, ये दो ही हमारे लिए, धर्म के लिए, आत्मा के लिए यही दो चीज है। बाकी सब कुछ हमारे मन के मुताबिक चलता है। तो जितना हो सके उतना करने की कोशिश करना, नहीं तो आप बोलोगे मैं कहाँ यहाँ आके बैठ गया, सब मेरे को ही आता है, ऐसा नहीं। तो इसका आज गुण है। आपकी 500 की नोट में कितने लैंग्वेज?
किसी को भी पूछो भाई धर्म क्यों करते हैं, कोई कहेगा मुक्ति के लिए, कोई कहेगा स्वधाम के लिए, कोई कहेगा आत्मा के लिए, कोई कहेगा स्वर्ग के लिए। शब्द की लैंग्वेज अलग है, आखिर हर एक का लक्ष्य एक ही है। धर्म इसलिए करते हैं कि इस भाव में हमें सुख शांति समृद्धि मिले, इसलिए करते हैं। मन है हमारा जो काम है बस ये हो जाना चाहिए, पीछे क्या होगा वो हम नहीं जानते। जिसने आत्मा में रमण किया उनका कल्याण है, जिसने व्यवहार में देखा उसका आखिर में एकदम होती नुकसान ही नुकसान है। तो उसने एक कर्म के ऊपर आस्थान पूजा के रूप में 68 प्रकार की पूजा लिखी। हमें ध्यान आना चाहिए कि हम कहां कहां कैसे कैसे क्या कर्म करते हैं, और ये कर्म से दूर होने के लिए हमारे से ऐसे गलती से भी न हो जाए ऐसी प्रवृत्ति हमें ध्यान में आए, इसके लिए ऐसी पूजाएं रची जाती है। लास्ट में मुझे यहाँ बोलो चाहिए, यहाँ कौन सा भगवान हरिहर के स्वरूप में है और कौन सा भगवान सिद्ध के स्वरूप में है, आप बता सकते हैं? आचार्य भगवान तो के गौतम स्वामी आदि के अज्ञात गंधर्व भगवान जो हुए, इन्हीं की बराबरी में ये आचार्य भगवंत है। आचार्य भगवंतों के 36 गुण हैं। आचार्य बनना ये कोई सहली बात नहीं है। आचार्य बनने के लिए गुरु की पहले तो छाया चाहिए, उसके बाद में ज्ञान ध्यान की आराधना चाहिए, और ज्ञान ध्यान के साथ योग वहन करना पड़ता है। जैसे हमारे लिए उपदान कब है, कितना उपदान है हमारे लिए? 3 उपदान है, ऐसा कहते हैं, बाकी हम 28 से अटक गए। तो आचार्य भगवान जिन शासन के सिंताज है, क्यों इनके पास क्या ऐसा है कि जिन शासन यहां तक चल सकता है? इनके पास 5 पीठिका है। सबसे पहले गुरु गौतम स्वामी की भक्ति है, गौमुख यक्ष की साधना है, महालक्ष्मी की असीम कृपा है। इनको नहीं भी इच्छा हो कभी उनका प्रभुत्व आ जाता है, सब उनके सामने जाकर के उनकी भक्ति करते हैं। तो ये तो गोविंद जी पाप की तकलीफ हो तो ही ऊपर देते, क्योंकि मेरे भगवान नीचे, और पांव की तकलीफ चाहिए तो फिर टटों पे दिक्कत नहीं। इतनी सी एक पाटली आती है, उसके ऊपर एक मोमबत्ती रहती है, उसके ऊपर 2 दानी रहती है, उसके साथ एक दिया करना है, जमीन के ऊपर नाक और कान घिसने पड़ते हैं।
खाली हाथ कभी भी पूजा करनी नहीं चाहिए। महापुरुष ने कहा है कि 3 स्थान में कभी खाली हाथ आपको राजसभा से काम करवाना हो, खाली हाथ से काम बनेगा। तो एक तो हमें खाली हाथ तो ये भक्ति करनी ही नहीं। गुरु पद में दूसरा पद है उपाध्याय पद, हरा ग्रीन। शास्त्रकार ऐसे कहते हैं कि इनको 3 पद दिया गया है। उपाध्याय पद को कितना पद है? 3 पद। पहला पद उपाध्याय, दूसरा पद है वाचनादाता, यानी कि जो भी भव्य जीव है उनको आगे बढ़ना है तो उपाध्याय का शरण स्वीकारने से इनका काम शुरू हो गया। ग्रीन सिग्नल हो तो आपकी गाड़ी रुक सकती है। ग्रीन सिग्नल रहा तो गाड़ी रुक सकती है, मैं चलती रहती है और स्पीड बढ़ जाती है। ग्रीन दिखाई दे तो और स्पीड बढ़ जाती है। तो ऐसे ही ये उपाध्याय भगवान को क्या जिसने आलम्बन लिया उन्हीं को आगे पीछे कहीं देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद ही परमात्मा के चरण शरण में है। ये हमें सही बताएगा, इसके लिए उनको गया वाचना करना। तीसरा पद कहावत है, जिनका पेट बड़ा उनको कहते हैं सेठ। क्या कहते हैं? कहते हैं। और जिनको पड़ गया गड्ढा उनके पास गया बड़ा गड्ढा। यानी कहावत है, पैसे वाला ना पैसे बिना का ना दिया और पैसे वाला ना खाला से। ऐसे ही 2 प्रकार के वृक्ष होते हैं। व्यवहार में कितने प्रकार के वृक्ष हैं? 2 प्रकार के वृक्ष हैं। यहाँ कानों के आसपास में सभी प्रकार के हैं, मगर मैं कहता हूं कि खजूरी हो या तालगिरी हो या तो नारियली हो, इनके पास खड़े रहने से छाया मिलेगा, छाव मिलेगा नहीं मिलेगा। और ऊपर से कुछ गिर गया तो पीछे से आवाज आया सब फूट जाएगा। मगर अभी सीजन कौन सी आ रही है? आम के वृक्ष के नीचे आप खड़े रहो तो छाया भी मिलेगा और मन हुआ तो आम भी मिलेगा। ऐसे ही कि हमारे उपाध्याय भगवान विनयवंत है। क्यों विनयवंत? क्योंकि आम में जब फल आता है तो वो झुक जाता है। आम में
आम के पेड़ में जब फल आते हैं तो वो क्या होता है, वो झुक जाता है। ऐसे ही जब जब जितना जितना ज्ञान बढ़ता है, ऐसे उपाध्याय भगवंत विनयवंत हो जाते हैं, नम्र हो जाते हैं। इसीलिए इनका तीसरा पद है विनय पद। ऐसे उपाध्याय भगवंत को हमें ये गुरु तत्व में दूसरे पद का पूजन करना है। हमें यही प्रार्थना करना है कि आपके जैसा विनय पद, आपके जैसा ज्ञान पद हमें भी प्राप्त हो और हम भी प्रभु के शासन में कुछ कर सके और कुछ आगे बढ़े। सिद्धाचार्य पाठाय सर्व साधुभ्यः। शुद्ध सिद्धांत अध्यापन प्रवणेभ्यः शिवभार्यायेभ्यः नमः।
दर्शन यानी सम्यक की पूर्ति करना। आचार्य भगवान प्रभु स्वामी महावीर परमात्मा के पाठ के ऊपर बन चुके हैं और उन्हीं के पाठ पे स्वयं सूरी जी महाराज आए। 45 साल तक इन्होंने ब्राह्मण के रूप में होम हवन वगैरह यज्ञ करवाया और उस समय में जैन साधु के मुख से इन्होंने सुना अहो कष्टम तत्वम न ज्ञायते। खेत की बात है कि धर्म करने चले मगर तत्व तो जानते ही नहीं। ऐसे आदर्श तो गुरु ने जो दिया था ये साधु के मुख से 3 बार इनको सुनाई दिया और ये स्वयं जी भट्ट उनके गुरु के पास गए। गुरु के पास जाकर के उन्होंने पूछा कि किम तत्व क्या है? गुरु कहता है इतने साल से तू करता आ रहा है वही तत्व है। तो कहना है जिन साधु कभी गलत नहीं बोलते सच्चा तत्व क्या है बताइए। तो मानने को तैयार नहीं थे। उस समय में स्वयं जी ने पहले के जमाने में, आज भी राजस्थान में शादी करने जाना हो तो क्या रखना पड़ता है? तलवार। तो उस जमाने में तो सबके पास था, तो उन्होंने निकाली तलवार। बोले तत्व दिखाइए, नहीं तो पहला डर आपका और दूसरा डर मेरा। बिना तत्व रहने का कोई काम नहीं है। ये 14वां रत्न ऐसा है, सच्चा कुछ भी उगल आता है। तो गुरु जी ने कहा ये थंबे के नीचे है, तो थंबा निकलवाया और थंबे के नीचे से शांतिनाथ परमात्मा की प्रतिमा निकली और ये प्रतिमा को देख करके स्वयं भट्ट जी सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर चुके। घर पे पूछने भी गए नहीं है, उनके धर्मपत्नी बेजीव वाली थी फिर भी पूछने नहीं गए और साधु को ढूंढते ढूंढते साधु के पास जा करके ये साधु बने और ये महावीर परमात्मा की पाठ परंपरा में स्वयं सूरी महाराज बने। और ये स्वयं सूरी जी ने 10वें सूत्र की रचना की और ये 10वें सूत्र आज भी साधु के जीवन में सबसे पहले ये पढ़ाया जाता है। ऐसा सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए हमें एक ही बात है, हम धर्म करें या न करें मगर हृदय में श्रद्धा कितनी होनी ही चाहिए कि परमात्मा के शासन के बिना मेरी मुक्ति नहीं। तो ऐसा निश्चितता से ये व्यवहार करने से सम्यक दर्शन की वृद्धि होती है और ऐसी वृद्धि को साथ हम सम्यक दर्शन का पूजन करेंगे। नमो तत्व रुचि रूपाय श्री सम्यक दर्शनाय नमः स्वाहा। जाप का मंत्र है ओम ह्रीं नमो दर्शनस्व। ओम ह्रीं नमो दर्शनस्व का जाप करना है। मुझे बताइए, आप टीवी के सामने बैठते हो तो आप भी बैठते हैं, आपके बच्चे भी बैठते हैं, आपकी धर्मपत्नी भी बैठती है, आपकी बहू भी बैठती है, सब कुछ बैठता है, सब कुछ सही आता है ना? सब कुछ सही आता है।
क्या देखते हैं मैं नहीं पूछ रहा हूं, मगर जो भी आता है उसमें सब कुछ सही दिखता है ना। बड़े की, छोटे की, बहू की आमनिया दिखती है ना उसमें, सब देखने लायक होता है ना। तो इसीलिए कहते थे कि सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करना है तो ये दो चीज से अलग रहिए, और दो चीज से अलग रहने वाले व्यक्ति ही पाठशाला में जा सकते हैं या गुरु के पास सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। आया तो तेरे लिए ये तैयार, क्या तैयार? अरे गिफ्ट की बात ही नहीं है, अभी तो आईफोन की बात चलती है। गिफ्ट कौन जानता है? अभी 5,000 100 रुपए दो तो इसकी कोई कीमत ही नहीं है। मगर पाठशाला में भेजने के लिए हमारे पास कोई आत्मबल नहीं है, और बाई चांस मान लो कि 9वीं तक वो बेटा या बेटी पाठशाला में जाता है तो 10वीं में कहते हैं अभी पाठशाला नहीं, अभी पढ़ने में ध्यान दो, और पाठशाला 10वीं से छूट गई तो छूट गए, इसके बाद में तो फिर पाठशाला जाना कोई जरूरी ही नहीं। तो बात यही है, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करना है। हमें भी सम्यक ज्ञान चाहिए। सम्यक ज्ञान प्राप्त करने से नहीं होता है, विचारों से होता है, मन से होता है, आचार से होता है। कई बार देखते हैं मंदिर में जाते हैं तो सबको मालूम है कि भगवान की राइट साइड में पुरुष को खड़े रह के दर्शन करना है या कोई भी क्रिया करना है, और बहनों को भगवान की लेफ्ट साइड में खड़े रह के करना है। इतना सब कुछ जानते हुए भी, देवी करते हुए व्यक्ति भी, भाई साहब पूजा कर रहे हैं तो मैं बीच में कैसे कर सकूं? तो बीच में एक बहन आ जाएगी और पाट पूजा करके चली जाएगी। या तो ये करते हो तो कोई भाई भी आ जाएगा, मालूम है मंदिर जाना है, जाना पड़ता है तो जाते हैं, वहां जाके क्या करना क्या नहीं हमें कुछ समझता नहीं है। अपनी मम्मी ने जो आया वो कर दिया, भगवान भी जानता है, हम तो बच्चे भूल हो जाए तो माफ कर। ऐसी बात नहीं है, सम्यक ज्ञान की बात है। शुद्धि के साथ, आचार के साथ, विचार के साथ ये क्रिया करोगे तो जरूर हमारा आने का और करने का कार्य सफल होगा, नहीं तो असाधना का निमित्त भी बन सकता है। ऐसे सम्यक ज्ञान की पूजा करना है। नमो रचनाचयो अध्याय सर्वसाधुभ्यं ओम ह्रीं तत्व परिणति रूपाय तत्वबोध रूपाय। सबका मन कहे, हर किसी को करना है। ओम ह्रीं नमो नारायण। बगल में घर में ही एक घर मंदिर बनाया है, और घर मंदिर में दर्शन करने के लिए कोई भी आ सकता है। भगवान है तो कोई भी आएगा, मगर जो व्यक्ति घर आएगा उनको कभी खाली हाथ जाने नहीं देते। जैसा समय इस तरह से उनकी भक्ति होती ही है। ये भक्ति तो बहुत सारे लोगों के यहाँ भी होती है, मगर यहाँ की एक बात अलग है। दूसरी बात ये है, घर से जाने के बाद, जाने के लिए उनको कहना है मैं कहाँ जा रहा, कितना समय लगेगा वो भी कहना है। इनके 3 बेटे हैं, तीनों बेटे के लड़के, कोई कहते नहीं कि ये मेरे चाचा का लड़का है, ये मेरे, हम सब पाएंगे। सबसे
बच्चों की थाली पापा बनाते हैं और पापा की थाली बच्चों बनाते हैं। नहीं समझ में आया? वो समझ में आया? दोनों हाँ, क्यों? रसोई की क्यों? प्यार है उनका। प्यार नहीं है, जो थाली में आया है वो खाना है। अभी तो इनको ये पसंद नहीं है, या इनको ये पसंद नहीं है, इनको ये पसंद नहीं है, ये चल रहा है। मगर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ ये है, थाली में जो गिरी हुई ये हमें खाना ही है। मतलब ये पसंद है नहीं पसंद है ये सब नहीं। हर रोज एक आइडियल होता है घर में एक आइडियल होता है, और इतनी सुंदर मर्यादा है कि कोई भी जाए तो मन में लग जाता है कि क्या घर बनाया है हमारा घर। यहाँ भी पूनमिया है, मरगांव से लेके बहुत सारे पूनमिया है। मगर सम्यक चारित्र की बात यह है कि संस्कार, और ये संस्कार से हमारा घर सुंदर दिखता है, ये संस्कार से हमारे घर की शोभा बढ़ती है, ये संस्कार से हमारे घर में देवों की वास होती है। देवों की वास यानी सब कुछ है। दुख देखने का काम ही नहीं है, सुख ही सुख है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर हमारा प्रेम भाव है, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना है। एक चूल्हे के दो चूल्हे की करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो घर में एक बेटा रहा फिर भी सोच आती है कि भाई हमें तो सास के साथ नहीं रहना, हम अलग रहेंगे। फिर बात निमित आ जाती है कि बोले जाओ बे तो क्या करे, हमें तो अलग ही रहना पड़ेगा। अब ये सोच हमारी है, हमें कैसे इनको सही रास्ते पर लानी है ये हमें देखना है। सम्यक चारित्र का मतलब यही है कि हम संस्कारी बने, हम संयमी बने, हम अनागत बने, और परमात्मा ने जो कहा है उस दिशा में हम आगे बढ़े। ऐसा जीवन आने से हमारे जीवन में कुछ धर्म की भावना पैदा होगी। नमो लक्षिताचार्यो अध्यायो सर्वसाधुभ्यो। ओम ह्रीं सर्व परिणति रूपायो श्री सम्यक चारित्राय नमः। चिंतामणि वाली चिंता पूर्व के जमाने में श्रीपाद महिला ने जो भी आराधन की, ये नवपन पूजन की, यही सिद्ध चक्र की उपमा थी। और आशोय चैत्र मास की जो होली तब की महिमा के लिए, तब की आराधना के लिए, तब की अनुमता के लिए हम यहाँ आए। આચાર્ય કવાય, તપના માધ્યમથી ઉપાધ્યાય કવાય, તપના માધ્યમથી સાધુ કવાય, અને તપના માધ્યમથી સાચા સાવક. નવો રચિતાચાર્યો આચાર્યો સર્વસાધ્યામા. છેલ્લો જાપનો મંત્ર છે ઓમ રીમ નમો નમસ્સ. ઓમ રીમ નમો નમસ્સ નો જાપ કરવો છે.
होली सखी गीत मोरा होई तली आनी सऊदी सवारी उतरी જેમાંથી નામની ઉત્પત્તિ થાય છે नसे घातिया कर्म अरहंत देवा करें सुर असुर नर मुनि नित्य सेवा दरस ज्ञान सुख बल अनंत के स्वामी 46 गुण युत महाईश नामी तेरी दिव्य वाणी सदा भाव्यमानी महामोह विंदंसिनी मोक्षदानी अनेकांतमय द्वादशांगी बखानी नमो लोक माता श्री जिनवाणी विरागी आचार जो वाछाए साधो दरस ज्ञान भंडार समतारा धो वेशधारी सोए का विहारी निजानंद मंडित मुकति पथ प्रचारी विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर विसराज विरह मान बंधु सभी पाप भाजे नमो सिद्ध निर्भय निराम અને ત્યાં એમની પાસે કોઈ એવો અભિમંત્રિત મંત્ર હશે કે મંત્રથી વાસક છે દરેક તપેલા ઉપર નાખી દે અને પછી કે જાઓ જમાડો બધાને 25,000 માણસ જમી લે તો પણ એટલું ને એટલું તપેલામાં હોય પછી મહારાજજી કે સાહેબ બહુ વધ્યું તો કે જાઓ અનુકંપા કરો
ચકાચક બાળકની પાછળ રાહ ચાલે છે. એમની એવી જ લડતી. એ ભણ્યા નથી હો કઈ, શાસ્ત્રપાઠ એટલું કઈ ભણ્યા નથી, પણ એમણે જે ગુરુની કરેલી સેવા અને વડીલો પ્રત્યેનો જે આદર ભાવ, વિનય ભાવ, અને એને કારણે કરીને એમને એવી શક્તિ મળી. કારણ કે એમનામાં બે જ ગુણ જબરજસ્ત છે. એક તો પ્રાણીઓની રક્ષા અને બીજું મારા સાધર્મિકની ભક્તિ. એને ત્યાં ગમે ત્યારે જાઓ એનું રસોડું ચાલુ જ હોય. સિદ્ધાચલ દરબાર જાજરમાન લાગે છે, રાજા ઋષભદેવ મહેરબાન લાગે છે. આજ અનંત સિદ્ધોનો અહેસાન લાગે છે, શાશ્વત સુખના સન્માન લાગે છે. સિદ્ધાચલ દરબાર જાજરમાન લાગે છે. કેવો એનો ઠાઠ છે ને કેવો છે રૂઆબ, શત્રુંજયના બાગનું શ્રી ઋષભજી છે ગુલાબ. ફૂલોના ઝૂલામાં કોઈ મહેમાન લાગે છે, ફૂલોના ઝૂલામાં કોઈ મહેમાન લાગે છે. રાજા ઋષભદેવ મહેરબાન લાગે છે, રાજા ઋષભદેવ મહેરબાન લાગે છે. સિદ્ધાચલ દરબાર જાજરમાન લાગે છે. કોઈ જે ના આપે તો સઘળું આપે છે, મારા ઋષભજી તો મારું ધ્યાન રાખે છે. એના હૈયે કરુણાનું મહાગાન લાગે છે, એના હૈયે કરુણાનું મહાગાન લાગે છે. રાજા ઋષભદેવ મહેરબાન લાગે છે, રાજા ઋષભદેવ મહેરબાન લાગે છે. સિદ્ધાચલ દરબાર જાજરમાન લાગે છે. જો ગગનનો સંગ કરે છે ગરવો ગિરિરાજ, ધરતીને આકાશ પર છે ઋષભજીનું રાજ. ભારતની ભૂમિનું આ વરદાન લાગે છે, ભારતની ભૂમિનું આ વરદાન લાગે છે. સિદ્ધાચલ દરબાર જાજરમાન લાગે છે, સિદ્ધાચલ દરબાર જાજરમાન લાગે છે. રાજા ઋષભદેવ મહેરબાન લાગે છે. રોજ સવારે આંખો જુએ સૂર્યોદયને સંગ, ઋષભજીની ગુણ કીર્તિનો ઉછળતો ઉમંગ. તીરથનું આ તીરથ આલીશાન લાગે છે, તીરથનું આ તીરથ આલીશાન લાગે છે. સિદ્ધ
સિદ્ધાચલ દરબાર ઝાઝર માન લાગે છે, સિદ્ધાચલ દરબાર ઝાઝર માન લાગે છે. રાજા ઋષભદેવ મહેરબાન લાગે છે. રાજા ઋષભદેવ મહેરબાન લાગે છે. મને વાલું લાગે, મને પ્યારું લાગે, મને વાલું લાગે પારસ નામ. ધન 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 પ્રભુના ચરણોમાં, ધન 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 પ્રભુના ચરણોમાં. મને વાલું લાગે પારસના, તન મન ધન પ્રભુના ચરણોમાં, તન મન ધન પ્રભુના ચરણોમાં. પ્રભુજીના ગુણનો પાર નહીં આવે, ધ્યાન ધરું તો સન્મુખ આવે. પ્રભુજીના ગુણનો પાર નહીં આવે, ધ્યાન ધરું તો સન્મુખ આવે. દીન જનોના નાથ છો, સેવકના રખવાડ છો, દીન જનોના નાથ છો, સેવકના રખવાડ છો, તમે મારા ચિતડાના છો. मेरु शिखरे नवरावे हो सुरपति, मेरु शिखरे नवरावे, मेरु शिखरे नवरावे हो सुरपति, मेरु शिखरे नवरावे. जन्म काल जिनवर जी को जानी, पंचरूप करी आवे हो सुरपति. त्याग समर्पण और संयमता, त्याग समर्पण और संयमता तप हमको सिखलाता है. त्याग समर्पण और संयमता तप हमको सिखलाता है. 13 मास की है जो साधना वर्षी तप कहलाता है. जय हो तपस्वी, जय जय जिन शासनम, जय हो तपस्वी, जय जय जिन शासनम. अपने मन में धीर धरे जो तप वो ही कर पाता है. अपने मन में धीर धरे जो तप वो ही कर पाता है. 13 मास की है जो साधना वर्षे तप कहलाता है. जय हो तपस्वी, जय जय जिन शासनम, जय हो तपस्वी, जय जय जिन शासनम. तप भाव जगे मन में तो भाग सवर जाए. तन हो जाए पावन, मन मंदिर हो जाए. आदिश्वर जैसा धीर जो साधक रख पाए, हो पुण्योदय उसका भव पार उतर जाए. ले सुरभित चंदन करो अभिनंदन,
ले सुरवित चंदन करो अभिनंदन, तपवीरों की गाथा है। तेरा मास की है जो साधना, वर्षी तप कहलाता है। जय हो तपस्वी, जय जय जिन शासन। जय हो तपस्वी, जय जय जिन शासन। आदिश्वर श्रमण बने, प्रण मन में धार लिया। घर घर वो भ्रमण करे, आहार का भाव लिया। ना समझा कोई मान, सबने उपहार दिया। श्रेयांस करे सत्कार, प्रभु मन को भाप लिया। एक शुरस से मौन श्रवण का, ओ एक शुरस से मौन श्रवण का पारण तब हो पाता है। आदि प्रभु का यही कठिन तप वर्षे तप कहलाता है। जय हो तपस्वी, जय जय जिन शासन। जय हो तपस्वी, जय जय जिन शासन।